خطابت کے لیے حضرت العلامہ جزا اللہ مولانا حافظ قاری مودی الرحمان صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور نورانی عرفانی بیانات سے ہم تمام سامعین کی دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ شعر کہتا ہے کہ خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، بولی سبحان اللہ، زور سے بولی سبحان اللہ۔ خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ اور فدا ان کی تقریر پر ہے یقینا، فدا ان کی تقریر پر ہے گلوں کی تبسم کلی کی جوانی، گلوں کی تبسم کلی کی جوانی۔ آئیے آپ کو تھوڑا جوش دینے کے لیے میں نعرہ مارتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کتنا دماغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل سنت و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بہتر نہیں بلکہ ضرور سمجھتا ہوں آقا انعامدار ان کی مدنی سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کو اس انداز سے درود و شریف یاد و محبت بڑے انداز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی جنبی والد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ صدیق و سلیمان دونوں بھائی بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ اس پرفتن ماحول میں اپنے والد کے اثار و ثواب کے لیے یہ عظیم الشان محفل منعقد کیا۔ عالیت نبی کی سیرت کی جانب سے تمام علماء کرام اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جشن رسول اللہ کانفرنس باہتمام آل انڈیا نبی کی سیرت، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح ہم کھانا 3 وقت کھاتے ہیں، ہمارے لیے لازمی ہو گیا ہے کہ ہم 3 وقت کھانا کھائیں۔ ہم 3 وقت نہیں کھانا کھائیں گے تو ہمارا سسٹم بدل جائے گا، طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ المختصر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دن بھر میں، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے۔ کتنے وقت کی نماز؟ 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے۔ اس کو ذہن میں بات یاد رکھیں اور آگے بڑھیں۔ جو آواز آ رہی ہے اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اطلاع سے اپنے ذہن شریف یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا مفہوم یہ ہے بے شک
जाता है। जब जिस्म बीमार होने के बाद में हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं और अपनी बीमारी को बताते हैं तो वो दवा लिख देता है। क्या लिख देता है? दवा लिख देता है। उसके बाद हम दवा खाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ये जिसमें जिस्मानी बीमारी ठीक हो गई। जब रूह बीमार हो जाए, जब रूह बीमार हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तबीब के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, तो कहता हुआ नजर आएगा जिसका दवा, जिसमें बीमार हो जाए मैं दवा दे दूंगा, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन रूह की दवा मेरे पास नहीं है। रूह की दवा मेरे पास नहीं है। रूह कब बीमार होती है वो जानना जरूरी है। हमें सर्दी लगी, ठंडक महसूस हुई, बीमार हो गए। रूह कब बीमार होती है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं रूह कब बीमार होती है? जब एक मुसलमान झूठ बोलता है, चुगली करता है, नमाज से दूर होता है, गुनाह से मुलव्विस हो जाता है, तब रूह बीमार हो जाती है। तब रूह बीमार हो जाती है। अहादीस करीम में बात आई है, जब इंसान जो गुनाह में मुब्तला होता है, उसके दिल में छोटा छोटा काला धब्बा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? काला धब्बा लगा दिया जाता है, उसका दिल सियाह हो जाता है। जब रूह बीमार हो जाए तो बात होती है और फरमाते हैं जब रूह बीमार हो जाए, जब कोई एक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके रूह की बीमारी को दूर कर दी जाती है। रूह की बीमारी को दूर कर दी जाती है। और मुख्तसर वक्त है, कुछ बातें बोलूंगा, गंभीर बांधते बांधते वक्त निकल जाएगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह बात होगी। जब इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उससे जो रूहानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। रूहानी बीमारी कौन सी? झूठ, चुगली और दगाबाजी, जितनी बुराइयां हैं, जितनी बीमारी है, जितनी जो शरीयत में हराम करा दिया गया, शरीयत में जो गुनाह करा दिया गया, उससे नमाज रोक देती है, उसकी नमाज रोक देती है। मुझे बताएं, कैसे एक आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, झूठ नहीं और नमाज जो पढ़ता है झूठ नहीं बोलता है ना, नमाज पढ़ता है चुगली नहीं करता, नमाज पढ़ता है बेहयाई नहीं करता, फिर क्या मामला होगा? नमाज, कुरान तो ये कह रहा है जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा उसको झूठ से बचा देगा, चुगली से नमाज बचा देगा और तमाम बीमारी से जो ये गुनाह है उससे बचा देगी नमाज। लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ता है फिर झूठ बोलता है, क्या मामला? बात समझ आ रही है ना? हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उस बंदे की नमाज नहीं, जिसकी नमाज बेहयाई और बुरी बातों से ना रोकता। बात और करें, उसकी नमाज नहीं, जिसकी नमाज बेहयाई और बुरी बातों से उसको रोक ना पाए। यहाँ कुरान ये कहता है जो 5 वक्त नमाज पढ़े वो बेहयाई से बचता हुआ नजर आएगा, चुगली से बचता हुआ नजर आएगा, झूठ से बचता हुआ नजर आएगा, तमाम गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा। ये क्या मामला है? नमाजी फजर की नमाज पढ़ा, चाहे दोपहर में बैठकर गुनाह कर दिया, लेकिन गौर व फिक्र करने की बात। कुरान तो हमें कष्ट दे रहा है, कुरान ये कह रहा है जो नमाज पढ़ेगा मैं उसको इन तमाम बीमारी से रोक दूंगा। कौन बोल रहा है? कुरान बोलता है रोक दूंगा। लेकिन ये क्या मामला हो गया? अब बहुत फिक्र करते हैं किसी नमाज के जरिए से गौसे आदम में गौसियत मिली है। क्या मिली है? समझ गए ना? इस नमाज के जरिए से कई ऐसे मुसलमान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुके, वली अल्लाह बन गए, कोई पीर बन गया, कोई कुतुब बन गया, कोई अब्दाल बन गया, कोई मुहद्दिस बन गया, कोई मुहद्दिस बन गया। लेकिन यही नमाज एक इंसान पढ़ना फिर गुनाह मुब्तला हो जाता है। ऐसा क्यों है? आप गौर फिक्र करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं नमाज को ड्यूटी समझते हैं। क्या समझ लिए? नमाज को ड्यूटी समझ लिए। और कुछ ऐसे मुसलमान हैं नमाज को अपनी जिम्मेदारी और अल्लाह की
मरीज बन चुके हैं, दिल हमारा सीधा बन चुका है, दिल हमारा बीमार बन चुका है, रूह रूहानी बीमारी से मुब्तला हो चुके हैं। क्या मामला है? जब हमने गौर व फिक्र किया तो एक हदीस सामने आई। कौन सी हदीस? हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज से खत्म होकर फरमाया ऐ नमाजियों इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखो। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया? इस तरह नमाज पढ़ो, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ मुझे पढ़ता हुआ देखो। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी नमाज कैसी है उसको हम खुद मुआयना करें और खुद अपनी नमाज का मुताला करें, बात समझ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ता हूँ जरूरी पॉइंट। नमाज में 6 शर्तें हैं। कितने शर्तें हैं? 6 शर्तें हैं। उसमें एक शर्त ये है कि नियत। क्या है? नियत। एक शर्त ये है नियत। सबसे पहली शर्त जो है वो क्या है? क्या है? नियत। नहीं, नियत नहीं सबसे पहली शर्त। सबसे पहली शर्त है तहारत। क्या है? तहारत। आज जब आप इस महफिल में आए हैं कुछ सीख कर जाने की कोशिश करें। सबसे पहली शर्त है तहारत, जिसका हम पाकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकी कहते हैं। दूसरी शर्त यह होगी सत औरत, जिससे हम कपड़ा पहनते हैं, छुपाते हैं, अपने जो जिस्म को छुपाते हैं उसे सत औरत कहते हैं। उसका खुलासा बहुत कुछ है, बताने का अभी वक्त नहीं है। तीसरा शर्त क्या है? वक्त। क्या है? चौथा शर्त क्या है? इस्तक़बाले क़िबला। पांचवा शर्त क्या है? नियत। छठा शर्त ये है तकबीरे तहरीम। ये सब चीजें आप करके आते हैं नमाज के लिए, लेकिन एक जो शर्त है नियत, आपकी नियत कैसी है इसको हमें मुआयना करना चाहिए। आपकी जो नमाज पढ़ने आता है आपकी नियत कैसी है उसको खुद झांकना चाहिए। हमारी नियत क्या है नमाज में? बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है क्या है? उसका मफ़हूम ये है नियत का जो अमाल का जो दारोमदार नियत पर। खुलासा कर दूं, जो हम जो अमल करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारी स्टाइल को नहीं देखता। कितना अच्छा जुब्बा पहना हूँ, कितना अच्छा अमामा लगाया हूँ, कितनी अच्छी टोपी पहना हूँ, कितना बढ़िया खुशबू लगाया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इन सब चीजों को नहीं देखता है बल्कि नियत को देखता है। हमारे दिल में क्या उमंग पैदा हो रही है, क्या ख्वाहिश पैदा हो रही है नमाज को लेकर, अल्लाह तबारक व तआला उसको देखता है। इसको देखता है, नियत को देखता है। नियत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रअयतुमूनी, ऐ नमाजियों इस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखो। मफ़हूम ये है। मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला एक पॉइंट बोल देता हूँ, उसके बाद में फिर मेरी तकलीफ खत्म, क्योंकि हमारे अकाबीर बैठे हुए हैं, वो फिर बोलेंगे कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करूंगा। पहला पॉइंट, जब हम आते हैं नमाज के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं? नमाज शुरू करने से लिए जब खड़े होते हैं क्या बोलते हैं? नियत करते हैं, जुबान से नियत करते हैं, उसके बाद कहते हैं क्या? अल्लाहु अकबर। क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर कहते हैं। जब तक इमाम के साथ में मुक़्तदी अल्लाहु अकबर नहीं कहेगा उसकी नमाज शुरू नहीं होगी, उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। क्या मामला है? तकबीर तहरीमा ये शर्त भी है और फर्ज भी है। सिर्फ तकबीर अल्लाहु अकबर नहीं है, बेशुमार तकबीरात हैं, लेकिन लफ्ज़ अल्लाहु अकबर वाजिब करार दिया गया। तकबीर तहरीमा के वक्त इमाम के साथ में मुक़्तदी भी कहेगा अल्लाहु अकबर। क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा। क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा है। अपने वक्त का बादशाह है, अपने वक्त का वली आए, अपने वक्त का कुतुब आए, अपने
मकबूल। समझ गए ना? इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब। दिल में यकीन रखनी पड़ेगी कि अल्लाह बहुत बड़ा, ज़बान से भी बोलनी पड़ेगी। कोई इंसान ये सोचे कि अल्लाह बहुत बड़ा है, आ गया कुछ नहीं कहा, खड़ा हो गया, नमाज शुरू नहीं हुई। नमाज शुरू नहीं हुई जब तक ज़बान से इकरार ना करे अल्लाहु अकबर, तब तक नमाज शुरू नहीं हुई। समझ गए? हाथ उठाते हैं, उठाने के बाद कहते हैं या अल्लाह अब कुछ नहीं, तेरे बारगाह में खड़ा हूं, तेरे बारगाह में खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह को कहता हूं। उसके बाद और एक मुद्दे की बात, उसका तकरीर खत्म, फिर मौका मिलेगा फिर आगे मुकम्मल नमाज पर गुफ्तगू होगी। उसके बाद क्या होता है, हम खड़े हो गए, लेकिन खड़े होने का तरीका हमें मालूम नहीं। क़याम फर्ज, खड़े होने का तरीका हमें मालूम नहीं। नियत और फिर तकबीर तहरीमा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खड़े हो जाते हैं, किस अंदाज से कहते हैं बहुत बड़ा, और खड़ा होता है अल्लाह अकबर, हाथ मुड़े हुए रहते हैं, कहता है तू बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा, हाथ मुड़े हुए रहते हैं और पैंट फोल्ड रहते हैं।